नमस्ते साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। I am very happy that this Congress is reaching the conclusion, successfully completing the agenda before it. साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो महाधिवेशन है अपना एजेंडा पूरा करते हुए अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। In reaching this level, from the experience the communist revolutions had during the 71-72 years, it was a difficult journey for all of us during this more than 4 decades period. 1971-72 के दौरान कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का जो अनुभव था, उस अनुभव से लेके पिछले 40 साल का जो लंबा दौर है, ये जो कठिन दौर रहा है, इसका अनुभव एक बहुत कठिन अनुभव लेते हुए अनुभव से होते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। And what we have seen in this during the party congress itself, or just before that, was that in spite of many difficulties, in spite of many problems confronted by the communist movement, we could arrive at the unity of a section of the communist revolutionaries along with our organization. इस महासम्मेलन के दौरान, महाधिवेशन के दौरान और उसके ठीक पहले हमने देखा है कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तो कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने कई सारी विशाल चुनौतियां होने के बावजूद हम इस दौरान सम्मेलन से थोड़ा पहले सम्मेलन के दौरान कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के एक हिस्से को एकजुट करने में कामयाब हुए हैं संगठन के साथ। So I feel that the most important task in front of the new Central Committee elected by you shall be consolidation of this unity and expansion of the unity so that all genuine Marxist-Leninist forces, communist revolutionaries, can be brought into a single organization party. इस महाधिवेशन में आप लोगों ने जो नई केंद्रीय कमेटी चुना है, तो मैं समझता हूँ कि उस केंद्रीय कमेटी के सामने सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि इस एकता को ठोस रूप देना, मजबूत बनाना और साथ ही साथ ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को, सभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को एक पार्टी के तहत एकजुट करना। It is not going to be an easy task because at the theoretical level, political level and organizational level, new challenges are faced by the communist forces today. So without solving or trying to solve these problems, we shall not be able to achieve this. लेकिन यह जो जिम्मेदारी है, यह जो कार्यभार है, कोई आसान सरल काम नहीं है, क्योंकि आज कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने सैद्धांतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समस्या है, उन समस्याओं का समाधान किए बिना इस कार्यभार को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। As the resolution on theoretical offensive adopted by the Congress itself shows the importance we are giving to the development of our theoretical understanding. In developing our theoretical understanding according to the concrete conditions of today. इस महाधिवेशन में हमने सैद्धांतिक मुहिम चलाने के बारे में जो प्रस्ताव पारित किया है, उससे आप समझ सकते हैं कि आज की ठोस परिस्थितियों में अपने सैद्धांतिक समझ को विकसित करने के काम को हम कितना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। And along with this task at the national level, we have got an important task at the international level, that we have to work more actively in ICOR, and we have to work hard to bring as many communist revolutionary forces around the world, especially in Asia, to the ICOR. राष्ट्रीय स्तर पे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। हाईकोर्ट के अंदर एक तो हाईकोर्ट में
आईकोन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए इसमें ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संगठनों को शामिल करते हुए और खास करके एशिया में आईकोन में संगठनों को शामिल कराते हुए। Because as our party is emphasizing the importance of developing the struggle for completing the People's Democratic Revolution in our country, along with that, we recognize the growing importance of uniting with the revolutionary forces at the international level to fight against imperialism and practice of all views. हमारे देश में जनता की जनवादी क्रांति को पूरा करने के लिए जो काम है उसको करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और उसके तमाम अनुचरों के खिलाफ संघर्ष के लिए विश्व स्तर पे जो क्रांतिकारी ताकतों के सामने एकजुट होना भी हमारी जिम्मेदारी है। Comrades, even after these unities of the different sections coming with us, still we are a very small organization, though we have got presence in 16 states. साथियों, जो अभी हमारे संगठन के साथ जो एकता हुई है, इस एकता के बावजूद हमारा संगठन बहुत छोटा है। हालांकि अभी हमारी जो उपस्थिति है देश के 16 राज्यों में उपस्थिति है, फिर भी एकता के बावजूद हमारा संगठन अभी भी उसकी लिहाज से छोटा है। In correspondence with our expansion at the All India level and the importance of the tasks, international and national tasks we are taking up, our organization has not developed much, and this is going to be a big challenge in front of us in coming days. हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जिन कार्यभारों को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं और अखिल भारतीय स्तर पर संगठन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस सब के बावजूद ये जो हमारे सामने जो जिम्मेदारियां हैं उसे देखते हुए सांगठनिक रूप से हम अभी उतना सक्षम व्यवस्था विकास संगठन का विकास उस लिहाज से उतना उस स्तर पर नहीं हो पाया। And to achieve this, we have to intensify our work among the working class, not only in the trade union field, but in recruiting large number of working class corporates to the party. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मजदूर वर्ग के बीच में काम करना होगा। मजदूर वर्ग के बीच में ट्रेड यूनियन का ही काम नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग से ज़्यादा साथियों को पार्टी में भर्ती करने का काम हमको करना होगा। The growing number of the working class in the country shows that without organizing the working class and politicizing them, the tasks we are taken up in the path of revolution cannot be achieved of mobilizing the people at the all level. हमारे देश में मजदूर वर्ग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनको संगठित करने का काम और उनको राजनीति से लैस करने का काम यदि हम नहीं करेंगे तो क्रांति के रास्ता में हमने जो चीज तय किया है यहाँ पे उस चीज को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। Secondly, we will have to give most important emphasis to the task of building the revolutionary present movement, including mobilizing the Adivasis, Dalits and all oppressed sections. इसके साथ साथ हमें क्रांतिकारी किसान आंदोलन संगठित करने को काम को महत्व देना होगा, जिसमें आदिवासियों, दलितों और सबसे पीड़ित तबकों को गोलबंद करने का काम भी शामिल है। And we have to recruit more cadets and deploy them in the different class and mass fields so that our activities can be developed and a leap can be achieved, because now we are very weak in these fields. We have to achieve a leap in the coming days in these fields. हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को भर्ती करना है और उनको अलग-अलग मोर्चों में नियुक्त करना है, अलग-अलग मोर्चों में उनको जिम्मेदारी देना है, क्योंकि सांगठनिक रूप से हम अभी भी कमजोर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैडरों को भर के अलग-अलग मोर्चों में नियुक्त किए बिना और हम कोई एक छलांग नहीं लगा सकते हैं। हमें आगामी दिनों में वो छलांग लगाने की कोशिश करनी चाहिए। In our draft documents which are discussed and adopted in the party congress, we have emphasized the gravity of the present situation when the BJP-led government has come to power at Delhi. महाधिवेशन में हमने जो दस्तावेज स्वीकार किए हैं उसमें हम आज के जो नाजुक हालात है, देश की जो नाजुक परिस्थिति है उसके बारे में हमने चर्चा किया है
मोदी सरकार केंद्र में, मोदी की घोर दक्षिणपंथी सरकार केंद्र में आने के बाद जो नाजुक हालात है उसके ऊपर चर्चा हमने किया है। To intensify the corporate loot, the communal fascist methods are intensified and communal forces are increased in every field, in the field of culture, education and social life. हाँ, कारपोरेट लूट को तेज करने के लिए जो सामाजिक जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें हैं उनको खुल के दंगा नाच करने का मौका दे दिया है, उनको छूट दे दिया गया है। वो सभी क्षेत्रों में, शिक्षा से लेके संस्कृति और तमाम क्षेत्रों में ये जो सांप्रदायिक जो जहर फैला रहे हैं। So as the central slogan of this party congress, struggle against corporate loot and communalism shows, we are seeing the struggle against these two aspects interlinked, and we have to take this struggle forward, and we see that the struggle against corporate loot cannot be carried forward without fighting the divisive forces who are dividing the toiling masses based on religion, caste and other chauvinist tendencies. साथियों, हमारे महाधिवेशन का जो केंद्रीय नारा था कि कारपोरेट लूट और सांप्रदायिकता को ध्वस्त करो, तो ये जो इन दोनों के खिलाफ, कारपोरेट लूट और सांप्रदायिकता के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ जो लड़ाई है, विषय से जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग अलग तरीके से लड़ सकते हैं। क्योंकि यदि हम कारपोरेट लूट के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं तो जाति, धर्म, इस तरह की नामों पे जो जनता के जो फूंक डालने वाली ताकतें हैं, इसके खिलाफ लड़ाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों लड़ाई आपस में जुड़ा हुआ है। So we have emphasized on the slogan, we shall not allow Modi government to turn India into another Gujarat. We have to understand the essence of the slogan and carry forward this task. हमने इस महाधिवेशन के रैली में यह नारा भी लगाया था कि हम भारत को गुजरात, मोदी सरकार को भारत को गुजरात बनाने नहीं देंगे। तो इस नारे का जो महत्व है, इस नारे की जो अंदर वस्तु है, उसका जो सार है, उसको भी हमको समझना होगा। Though Modi government is in a hurry to impose the neoliberal policies, the new generation reforms, the second or third green revolution, all these things, we are seeing that the people's illusion, whatever illusion any section of people had on Modi government, is slowly withering away. मोदी सरकार को जो 9 दारों की नीतियों को लागू करने के लिए, जो कारपोरेट परस्त नीतियों को लागू करने के लिए बहुत जल्दबाजी है, लेकिन हम देखते हैं कि मोदी सरकार को लेकर जनता के भी हिस्से में जो भी थोड़ा जो भ्रम बना था कि वो कुछ करेगी, वो भ्रम बहुत तेजी से टूट रहा है। So what is needed at the state level and all India level, as we have seen in Delhi, is the people's urge for an alternative against the main ruling class forces, which can implement a new policy approach against neoliberalism and against communism. हाँ, तो हमें जो जरूरत अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर हमें जरूरत इस बात की है, और जैसा कि दिल्ली का हाल का जो विकास घटनाक्रम दिखाता है कि जनता जो शासक वर्ग की मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उसके खिलाफ एक विकल्प की तलाश में है, और हमें ऐसा विकल्प बनना होगा जो नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक वैकल्पिक नीति का जो पक्षधर है, ऐसा एक विकल्प हमको बनाना है। So the central task will be building the party at all India level to become the revolutionary core, and secondly to build the revolutionary left and democratic alternative against the ruling class policies. तो हमारे सामने मुख्य कार्यभार है कि पहला तो एक अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, उसका विकास करना, ताकि वो ऐसे इस विकल्प का एक कोर बन सके, केंद्र बन सके, और दूसरा एक क्रांतिकारी वाम जनवादी जो विकल्प तैयार करना। To achieve this, we have to recognize that India is a very complex country. It's a very complex society where so much of diversities are there, and to develop a party
at all level with so much of unevenness. It's a task which is to be taken with a lot of maturity and consensus. हाँ, इस कार्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें ये समझना हो कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे ढेर सारी विविधताएं हैं और वो यहाँ के हालात में बहुत सारी जटिलताएं हैं। तो इन सबको समझते हुए हमें एक जो इस कार्यभार को हाथ में लेना है, जो विविधता और जटिलता है, समानता है, इस चीज को देखते हुए हमें इस कार्यभार को हाथ में लेना है। Though the struggle against imperialism, the struggle against British colonialism had united the people of India to a great extent. What we are seeing, after 47, the ruling classes and the imperialist forces, their cultural offensive, have tried consequently to divide the people, to weaken this people's unity against the ruling system. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में हमारे देश की जनता की जो लड़ाई व संघर्ष हुआ, उसने इस देश को एकता के सूत्र में काफी हद तक पिरोया था। लेकिन हम देखते हैं कि 1947 के बाद से जब भारत का शासक बढ़ गए और साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वो हमारे देश की जनता की एकता को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। We are divided into so many sections, to pieces, and the ruling class is consciously trying to continue to divide us, continue to prevent the unity of the struggling forces at all India level. हम कई अलग तरीके से बटे हुए हैं और शासक को जानबूझ के सोच समझ कर इस जो फूट है, जनता की जो फूट है, उसको बढ़ावा दे रहा है ताकि संघर्षशील जो जनता का एकता कायम ना हो सके। The influence of these tendencies are visible in the broad left spectrum also, which is preventing the unity of the left forces. और ये जो रुझान है, इसका जो असर, जो व्यापक जो दायरा है, उसमें भी देखने को मिलता है, जो उनको एकताबद्ध होने से रोक रहा है। So the question is, the big challenge before the communist revolution is, in spite of the unevenness in India, the complexities in India, how can we come together and based on a strategic approach so that the tactical questions according to the unevenness in different regions can be taken up through a healthy struggle within the party. तो हमारे सामने चुनौती है कि तमाम विविधताओं के बावजूद, तमाम किस्म की असमानताओं के बावजूद हम जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शक्तियां हैं, वो किस तरीके से एक रणनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर एक साथ आए और कार्यगत जो मतभेद है, उसको जो अलग अलग जगह के जो ठोस परिस्थिति है, स्थानीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, समानता है, उसके आधार पर कोई बहस के जरिए हम उसको तय करते हुए आगे बढ़े। And while carrying forward the activities at the state level and all India level, this problem, the problem of overcoming the divisive forces and uniting the people based on the Marxist-Leninist approach is a big challenge before us. तो अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर काम करते हुए हमारे सामने सबसे एक बड़ी चुनौती ये है कि जो फूटप्रस्त ताकतें हैं, उससे उनका मुकाबला करते हुए कैसे तमाम शक्तियों को एकजुट किया जाए। Now I am happy that we have elected a 30-member Central Committee which reflects many regions and lot of which includes many experienced comrades also. मुझे खुशी है कि हमने यहाँ पे 30 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी का चुनाव किया है। इस 30 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी में जो कई सारे इलाकों का, कई सारे अंचलों का इसमें प्रतिनिधित्व है और साथ ही इसमें कई सारे अनुभवी कॉमरेड भी शामिल हैं। I hope this Central Committee will take up the important challenging task in front of it and shall proceed towards our next party congress, which we can look forward to organizing, synchronizing with the 100th anniversary of the Soviet Russian Revolution, October Revolution. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो केंद्रीय कमेटी है वो अगले पार्टी महाधिवेशन को
ध्यान में रखते हुए उसके सामने जो जिम्मेदारियां और चुनौतियां हैं उसका बखूबी निर्वाह करेगी। और जो हम उसका उम्मीद कर रहे हैं कि जो महान अक्टूबर क्रांति की जो 100वीं वर्षगांठ है उसके साथ तालमेल, उस समय के साथ तालमेल करते हुए हम अगला मार्गदर्शन करें। 2070 is going to mark the 100th anniversary of October Revolution, and we have to work hard in the coming 2.5 years before us so that we can unite, we can come together again in the 11th Party Congress on that occasion when we are observing the 100th anniversary of the October Revolution. 2017 जो रूस की महान अक्टूबर क्रांति की 100वीं वर्षगांठ होगी 2017 को, और ये जो 2.5 साल का समय हमारे सामने है, इस समय में हमें कड़ी मेहनत करना है ताकि हम जब अक्टूबर क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे और उसी के आसपास हम जब अपना पार्टी मार्गदर्शन कर रहे होंगे तो उस लक्ष्य को लेके हमको 2-2.5 साल में 2.5 साल का जो समय है उसमें कड़ा मेहनत करना है। This convention report reveals that the average age of the delegates who are present here is 42. That means we are a party of the young people. यहाँ पे जो क्रेडेंशियल रिपोर्ट पेश किया गया उससे साफ होता है कि हमारा जो यहाँ पे जितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे उनकी जो औसत उम्र है वो 42 साल है, और 42 साल की उम्र होना मतलब अभी हमारी पार्टी एक नौजवान पार्टी है। That means we have a very large number of young comrades who are working at the district level, state level, and all India level. And of course, our strength at the women's front is strong, is weak. At least as reflected in the party congress, we have to overcome that weakness also. इसका मतलब यह भी है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाले ऐसे बहुत सारे नौजवान अभी हमारे पार्टी के साथ में नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा, जो महिलाओं की जो जहाँ तक बात है, इस महाधिवेशन में भी हमको देखने को मिला कि उनका जो भागीदारी है वो कम है। हमको इस कमजोरी को भी दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। So comrades, let us take up this task, let us go forward, and let us look forward to convening the 11th Congress after great struggles at the all India level, mobilizing the working class, the peasantry, and all the toiling masses in the country. साथियों, आइए हम आगे की ओर बढ़े। देश के मेहनत कर जनता को, मजदूरों और किसानों को गोलबंद करते हुए उनके संघर्षों को नेतृत्व देते हुए हम अगले महाधिवेशन को ध्यान में रख के इस संघर्ष का विकास करें। I assure you that as I have done in the past, in the coming years also, I will be exerting my whole effort to serve this goal of advancing the party to a higher level. जैसा कि मैं पिछले अतीत में करता आया हूँ, मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जो है वो मैं करता रहूँगा। Salute to all the comrades. Inqilab Zindabad. सभी साथियों को